السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اقلیتی بے روزگار نوجوانوں میں 1 لاکھ روپے امدادی چیکس کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ ٹی سرینواس یادو نے صنعت نگر میں چیکس کی تقسیم کی۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے اقدامات میں مصروف۔ حکومتی اسکیمات کی کامیابی کے ساتھ عمل آوری۔ کانگریس الیکشن اسکریننگ کمیٹی کا اجلاس، پارٹی ٹکٹ کے لیے وصول ہوئی درخواستوں کا لیا گیا جائزہ۔ پونے سے تعلق رکھنے والی بین ریاستی گینگ کے 4 ملزمین گرفتار، طلائی زیور و دیگر اشیاء برآمد۔ بوئن پلی پولیس نے کی کارروائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر BRS و وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے 21 اگست کو آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کے 115 امیدواروں کی فہرست جاری کی تھی، جس کے بعد پارٹی میں ناراضگیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور کئی سروے رپورٹس کے مطابق ماہ دسمبر میں منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات میں BRS اور کانگریس کے درمیان کانٹے کی ٹکر کا مقابلہ ہوگا، اس کی پیش قیاسی کی گئی ہے، جس کے بعد وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ کی امریکہ سے واپسی کے بعد امیدواروں کو تبدیل کرنے کے سلسلے میں مذاکرات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق جاری کردہ 115 امیدواروں کی فہرست میں سے 35 ناموں کو تبدیل کرنے کے سلسلے میں چندرشیکھر راؤ اہم فیصلہ لے سکتے ہیں۔ ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے اپنے حلقہ اسمبلی صنعت نگر میں اقلیتوں میں بغیر کسی واپسی کے 1 لاکھ روپے کی مالی امداد کے چیکس تقسیم کرنے کے بعد بتایا کہ ملک بھر میں تلنگانہ حکومت ہی وہ واحد حکومت ہے جہاں پر اقلیتوں کی ترقی اور ان کے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور دلتوں کی طرح اقلیتوں کو بھی بغیر کسی واپسی کے مالی امداد دیتے ہوئے انہیں کاروبار کی سہولت فراہم کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے سلسلے میں اقدامات میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ نامپلی جعفر حسین معراج نے حلقے کے مختلف ڈویژنز کارپوریٹرز کے ہمراہ زونل کمشنر GHMC وینکٹیش دھوترے IAS سے ملاقات کرتے ہوئے مختلف ڈویژنز میں زیر التواء ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے سلسلے میں نمائندگی کی۔ اس موقع پر مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کے ہمراہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز بشمول ڈاکٹر عارف رضوان، ڈاکٹر قاسم ظفر خان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ زونل کمشنر نے تیقن دیا کہ کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں کی عوام کی جانب سے شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم کے تحت دی گئی درخواستوں کو اپنی نمائندگی کے ذریعے منظور کرواتے ہوئے منظور شدہ درخواست گزاروں میں چیکس کی تقسیم عمل میں لا رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے سعید آباد منڈل کے تحت منظورہ چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر متعلقہ منڈل کے عہدیداروں کے علاوہ کارپوریٹر و دیگر بھی موجود تھے۔ مجلس کی نمائندگی پر منظورہ شادی مبارک کے چیکس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے 11 مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں چیکس تقسیم کیے۔ استفادہ کنندگان کا تعلق فرحت نگر، عثمان پورہ، کٹل گڑھا، اعظم پورہ اور چنچل گڑھے سے بتایا گیا ہے۔ اس موقع پر تحصیلدار چار مینار نہاریکا، ڈپٹی تحصیلدار آصف خان، محمد رضوان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا۔
डीसीपी सौजन पी साई चैतन्य आईपीएस ने शिबलीगंज हुसैन अलम में वाक़ जनूबी हिंद की अजीम इस्लामी यूनिवर्सिटी जामे निज़ामिया का खैर सगाली दौरा किया और वहाँ के ज़िम्मेदारों से भी मुलाकात की। शेखुल जामे जामे निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद से मुलाकात करते हुए उन्होंने तहनीत भी पेश की। डीसीपी के हमरा एडिशनल डीसीपी शेख जहांगीर और सर्कल इंस्पेक्टर हुसैन अलम सी नागेश्वर रेड्डी भी मौजूद थे। इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस मानिक राव ठाकरे और सदर टीपीसीसी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की क़यादत में गांधी भवन में कांग्रेस इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें आने वाले असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए दाखिल की गई 1000 दरख्वास्तों का जायज़ा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इस बात का फ़ैसला किया गया है कि ऐसे असम्बली हल्के जात जहाँ पर मौजूदा अराकीन असम्बली हैं और जो अराकीन पार्लियामेंट ने असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं उन्हें, और जिन इलाक़ों में एक हल्के के लिए 3 ta 5 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी है, उन हल्कों के उम्मीदवारों के नामों को खतियत देते हुए 5 सितंबर को फहरिस्त जारी की जाएगी। आशा वर्कर्स ने अपने मुतालबात पर मुबनी मेमोरेंडम रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव को हवाले करने के लिए उनकी क़यामगाह पहुँचे, जहाँ पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। क़ब्ल अज़ीं आशा वर्कर्स ने अपना मेमोरेंडम अम्बेडकर के मुजस्समे के पास रखने की नाकाम कोशिश की। पुलिस ने वहाँ से भी आशा वर्कर्स को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। आशा वर्कर्स ने उन्हें मुस्तकिल करने और दीगर सहूलतें फ़राहम करने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। जीएचएमसी दफ्तर के पास ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनके करोड़ों रुपयों के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने हाथों में बैनर थामे हुए पैसा नहीं तो काम नहीं के नारे बुलंद किए। जीएचएमसी कॉन्ट्रैक्टर्स ने कहा कि उन्हें 2021 से बकायाजात की अदायगी नहीं की गई है और साबिक़ कमिश्नर लोकेश कुमार फंड जारी करने का सिर्फ तयख़ुन ही देते रहे। इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया है कि जब तक बकायाजात की अदायगी नहीं की जाएगी तब तक तामीरी काम नहीं किए जाएंगे। बोयनपल्ली पुलिस ने पुणे की बैन रियासती गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 मुलज़िमीन को हिरासत में लिया। उनके कब्ज़े से 4,60,000 रुपये मालियती अशिया बरामद की। डीसीपी नॉर्थ जोन चंदना दीप्ति आईपीएस के मुताबिक मस्कुरा टोली महाराष्ट्र में हुई 23 सरखे की वारदातों में मुलविस पाई गई है। बोयनपल्ली में हुई एक सरखे की वारदात के सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने केस रजिस्टर करने के बाद कार्रवाई करते हुए इस गैंग का पर्दाफाश किया। इस गैंग के दीगर 2 अराकीन मफरूर बताए गए हैं। ये चोर जो इधर है आपके सामने 4 लोग हैं, इनको पकड़े हैं। ये 4 लोग इंट्रोगेशन के टाइम और भी ऑफेंसेस कन्फेस करे थे। ये लोग 4 ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है, बोगनपल्ली, गोपालपुरम, चिलकलगुड़ा, मल्काजगिरी में। इनके खिलाफ 25 केसेस ऑलरेडी हैं महाराष्ट्र पुणे में। पहले रेकी के लिए जाते हैं, जो भी घर ताला लगा होता है उसको देख के अंदर जाने के लिए कोशिश करते हैं। दिन में जो हाउस ब्रेकिंग करते हैं वैसी एमओ के थ्रू ये लोग ऐसे ऑफेंसेस करते हैं। अभी तो 4 ऑफेंसेस 3 दिन में ये लोग किए हैं। ये अपने साथ ट्रेन में उनके बाइक को भी लेके आए। वो बाइक का हेल्प लेके A2 ने A1 को ड्रॉप करता है कहीं रेकी करने के लिए, फिर वो ऑफेंस करने के बाद उसको पिकअप करके ये लोग वापस आ जाते हैं लॉन्च। बीजेपी से मुअत्तल किए गए गोशा महल के एमएलए राजा सिंह ने कहा है कि तेलंगाना को हिंदू रियासत बनाना उनका मकसद है। राजा सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे, लेकिन हिंदू धर्म के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो कभी भी बीआरएस और कांग्रेस जैसी सेकुलर जमातों में शामिल नहीं होंगे। లే నేను సచ్చిన బీఆర్ఎస్ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ సెక్యులర్ పార్టీలో నేను వెళ్ళను. నేను ఒక హిందూవాదిని. హిందూ రాష్ట్రం చేయాలి నా లక్ష్యం. బీజేపీలో ఉంటాను.
లేకపోతే రాజకీయం కొన్ని సంవత్సరాలు ఇడిచి హిందూ రాష్ట్రం గురించి పనిచేసుకుంటాను. అంత తొందరగానే అవుతుంది. ఆల్రెడీ కేంద్రం నుంచి కానీ స్టేట్ నుంచి కానీ ఆల్ బీజేపీ అధికారులు నా ఎంబడున్నారు. అంత తొందరగానే అయిపోతుంది. లేలే, నేను ఇప్పుడే చెప్పినా మీకు, నేను ఇండిపెండెంట్గా కానీ వేరే పార్టీ కానీ అసలు నేను పోటీ కూడా చేయను. కావాలంటే కొన్ని సంవత్సరాలు రాజకీయంని పక్క పెట్టి నా భారతదేశం హిందూ రాష్ట్రం కావాలి, ఆ లక్ష్యం పైన నేను ముందుకెళ్తాను. చాలా మంచిగా రెస్పాన్స్ ఉంది. స్టేట్ కమిటీ కానీ సెంట్రల్ కమిటీ కానీ అందరు నా ఎంబడున్నారు. సరైన సమయం గురించి వాళ్ళు చూస్తున్నారు. సరైన సమయం వస్తుంది. మళ్ళీ ఒకసారి మీ ఎంబడి నేను ఉంటా. మళ్ళీ ఒకసారి టికెట్ కూడా తీసుకుంటా. మళ్ళీ ఒకసారి గెలిచి కూడా చూపెట్టా. లేలే, ఫస్ట్ గోషామల్ నియోజకవర్గం నుంచే కొట్లాడతా, ఎమ్మెల్యేగానే నేను కొట్లాడతా. शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम रखे जाने की इत्तला झूठी साबित हुई। आरजीआई पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ एयरपोर्ट पर बम रखे जाने से मुतालिक ईमेल मौसूल हुआ था और फौरी उनकी टीमों ने मुकम्मल और जामे तलाशी अंजाम दी। तहम एयरपोर्ट से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, जबकि इस सिलसिले में केस भी दर्ज कर लिया गया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। नानकरामगुड़ा में एक ज़ेर तामीर इमारत से खातून की झुलसी हुई नाश दस्तयाब हुई है। मुतवफ़िया की शिनाख्त वड्डर बस्ती की साकिन खातून की हैसियत से की गई है। शुबा किया जा रहा है कि मुबैना इस्मत रेज़ी के बाद वज़नी पत्थर से खातून का क़त्ल किया गया। ये भी बताया गया है कि खातून कचरा उठाने का काम किया करती थी और जब वो ज़ेर तामीर इमारत में पहुंची तो वहां उसके साथ ज़्यादती की गई और फिर उसका क़त्ल कर दिया गया। ये भी इत्तला मिली है कि यह खातून 25 अगस्त से लापता थी और इसकी गुमशुदगी की शिकायत भी मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी। नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। तेलंगाना के नागर कर्नूल में बीआरएस पार्टी के एमएलए एम जनार्दन रेड्डी के गांव के दौरे के मौके पर तशहीरी मुहिम का एक वीडियो मंजर आम पर आया है, जिसमें शिरकत करने वालों को रकम और शराब की बोतल देने का ऐलान देखा गया। अमूमन इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐसे मनाजिर देखे जाते हैं। टीआरएस पार्टी ने असम्बली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अब अमलन उसकी इंतखाबी मुहिम का भी आगाज़ हो चुका है। మరి జనార్దన్ రెడ్డి మూడింటికి మనవులకు వస్తున్నాడు. మూడింటికి బోనం చేసుకొని మూడింటికి మనవులకు దేవుని గుడి కాడికి రావాలి. బోనానికి 300, బతుకమ్మని చేస్తే 200 రూపాయలు. ఎవరైనా కాసుండి పొట్ట దుంకుతే ఒక ఫుల్ బీరు. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अक़लियती बेरोज़गार नौजवानों में 1 लाख रुपये इमदादी चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी। टी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर में चेक्स की तकसीम की। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। हुकूमती स्कीमात की कामयाबी के साथ अमलावारी। कांग्रेस इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी का इजलास। पार्टी टिकट के लिए वसूल हुई दरख्वास्तों का लिया गया जायजा। पुणे से ताल्लुक़ रखने वाली बैन रियासती गैंग के 4 मुलज़िमीन गिरफ्तार। तिलाई जेवर व दीगर अशिया बरामद। बोयनपल्ली पुलिस ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।